वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इतना ऐतिहासिक इवेंट रहा, और बहुत दिन से मुझे भी लोग बोल रहे थे कि इसमें क्या हुआ, क्या स्टोरीज हुई, सब कुछ। कोई जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल साक्षात देखा हो, आ, वो अगर आके बताए तो बहुत मजा आए। तो दिस इज द सेशन। साहिल भैया, आप सब उन्हें जानते हैं, और सब साहिल भैया को बहुत प्यार करते हैं इन दिस चैनल। सो वो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल गए, और वहां पे उन्होंने सारी चीजें एक्सपीरियंस की। तो आज का सेशन इसी पे होने वाला है, which is the soul string experiences एंड गुरु ग्रेस स्टोरीज। जो गुरु स्टोरीज है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जो हुआ उसके अराउंड। सो आप लोग तो बस टाइटल देख के ही अंदर आ गए हो इस सेशन को देखने के लिए। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन अलॉट। जो गुरुदेव का विजन है वही हमारा मिशन है, बस इसी को लेके हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हमारे साथ साहिल भैया है। साहिल भैया को तो हर कोई जानता ही है, but still for the people who are new, so I will little bit tell about him. He is a distinguished graduate from IIT Kharagpur, and he is a visionary. Uh, he is a visionary founder of award-winning startup thepracticalJyotish.com. He is globally renowned astrologer and counselor, having conducted astrology workshops and seminars worldwide. He is celebrated for his research, which unearths the scientific facets of spirituality and astrology. Moreover, he is an art of living teacher, facilitating over 30 programs with art of living. तो बहुत सारे प्रोग्राम सिखाते हैं भैया, और आज हमारे साथ हैं। तो साहिल भैया, आपको ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक गुरु स्टोरी बताना चाहूंगा। मैं जब सेशन से थोड़ी देर पहले ही आज हमारे साथ भी बैठी है राशि जी, उनसे मैं बात कर रहा था, एंड शी वाज टेलिंग अबाउट कि आपने किस तरीके से उनको सतवा टॉक्स के को इंट्रोड्यूस कराया, मेरा नंबर दिया, एंड आफ्टर दैट शी इज डेली कमिंग इन सतवा टॉक्स एंड वाचिंग दिस सेशंस। तो ये बहुत एक जो होता है ना, कैसे भक्त को एक एक स्टेप आगे लेके जाना है, बहुत जबरदस्त भैया। और आराशी जी भी आज हमारे साथ बैठी है, काफी तारीफ कर रही थी आपकी। सो साहिल भैया, जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जो जर्नी रही वो सब हम सब सुनना चाहेंगे आज। सो वी आर ऑल इन दैट स्टोरी मोड राइट नाउ। सो ओवर टू यू। Yes. So let us just chant Om 3 times. Take a normal breath in and breathe out. One more deep breath in and breathe out. Breathe in for 4. Breathe in. Breathe in. Om Namo Pranavathaya Shuddha Jnani Namo Buddhaya Prashanta Dakshinamurtaye Guru Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheshwara Guru Sami Parampara Tasmai Shri Gurave. Slowly and gradually you can open your eyes. Yes, Jai Gurudev.
Yeah, Rashi ji, you are from which place? You are from India only? Bangalore. Oh, that's nice. That's nice. Abhishek, maybe I'm not on the spotlight. Just that. Yes. So yeah, WCF. How was WCF? So let us start from the start. Like I have shared कि कैसे ये WCF का प्लान हुआ, बट WCF जाने का रास्ता ही इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. गुरुजी के किसी भी काम में जाओ ना, तो देयर आर थिंग्स डजंट हैपन एज सच जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो. ओके, सो I cannot see myself still. Abhishek, I'm on spotlight. Yeah, just let me नहीं, आप check. स्पॉटलाइट हो भैया. Let me check. हाँ, okay, yeah. Yes. So generally, whenever I travel, जिन लोगों को travel करना पसंद है, तो I generally, especially US और even Europe, तो वो countries दूर की होती है, तो always you can find some connecting flight. Okay, so this time I have taken the different route. Generally, people goes to Middle East, Kuwait, Qatar, और वहां से फिर US की फ्लाइट लेते हैं. डायरेक्ट US की फ्लाइट will be like 20 hours generally, 20-15 hours. Okay. So this time I was traveling to Japan, and I had a lot of friends and devotees who were asking like you should visit Japan, and I had promised them. This is also a guru story. कि 2023 की starting में, out of nowhere, I have promised them that I'll be visiting Japan this year, and coincidentally my flight was through Japan. Okay, so I had spent around 1 day in Japan before going to WCF US. Okay, so very amazing Guru story happened in Japan itself. Okay, anybody like see the Guru story se start kare? How many are ready? Directly into the climax. Yes, भैया, all set. Okay, so in Japan, like I have some of my like school college time ke friend bhi, one of the person was in Tokyo working in a software company. He was like on site in Japan. So I thought he's in Tokyo. He himself contacted me. Are you are coming to Tokyo, so you should visit our place also. And yeah, he knows me from like 10-15 years from my child. Okay, so Japan man, he know like he has not done the Art of Living course also, but he know like I am very spiritual, and so he has planned a trip to a temple, very famous temple in Tokyo, Sensoji. Okay, so interesting part is जैसे इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा हर सिटी हर स्टेट की एक देवी देवता होते हैं. ओके, सो वैसे ही जापान में एक टेम्पल है सेंसोजी. यू कैन मे बी सर्च ऑन गूगल ऑल्सो. So that was like the main देवी, main like energy, main angel of that city. So I had gone to the temple और उसमें एकदम वैष्णो देवी जैसी थी. So I was expecting कि इंडिया के बाहर तो लोगों की भीड़ कम होती होगी, but Japan was like that was a Sunday, Saturday, Sunday also. So it was like so much rush. And my friend knew like I am into astrology also. He told me something very interesting कि यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में पत्री रीडिंग होती है ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, पत्री में आपका भविष्य हो जाता है. So in Japan, Tokyo also, there was a place in that Sensoji temple that you put a coin. Okay. So first of all, I went to the temple and the energy was really amazing. Like India में ऐसा लगता है कि you go to Indian temple and I can feel a similar energy, very similar energy in that temple also. It is like maybe more connected to Buddhism, Japan, but the energy of that Sensoji temple was really amazing. Okay. Then that my friend took me to a place where that was like a astrology section, and the best part is there is no human involvement in that astrology reading. It is done. It is said that it is done by that divine energy itself. So what was the procedure? There will be like boxes in which there will be sticks. Okay, and something will be written on that sticks in Japanese language. So you have to put a coin, 100 yen coins. Okay. So that is like the Dakshina of peace. You put a coin, then suddenly at the outlet of the box, door will open and you have to shake the box. Okay. So door will open. I'll put it in Hindi, English both. Okay, कितने लोग हिंदी वाले हैं वैसे? Let me just check. हिंदी वाले just write it down. So I'll
या तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे कि आई वेंट टू दिस, मैं इस मंदिर में गया टोक्यो के सेंचुरी टेम्पल पे, और इधर एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाला सेक्शन। ओके, सो यू नो, एज इंडियंस यू ऑलवेज फील कि हमारा धर्म, हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, सो आई एम लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग। तो मैं, मेरे मन में थोड़ा सा वो था उस टेम्पल में जाके कि ठीक है यार, मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, वी आर लाइक, मतलब इंडिया की वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी बिग। तो आई वॉज जस्ट डूइंग एज अ फन एक्टिविटी, मैं इतना सीरियसली नहीं कर रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं हाँ क्या हो। सो आई हैव पुट अ कॉइन, तो उस बॉक्स में से एक स्टिक निकली, उसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था। तो वो स्टिक, इट्स लाइक अ दिस बिग स्टिक, इतनी बड़ी लकड़ी की थी, उसमें जापानीज में कुछ लिखा हुआ था। और सामने देयर आर लाइक लॉट ऑफ कपबोर्ड्स, तो कपबोर्ड्स में भी जापानीज में जो स्टिक्स में सिंबल्स बने थे ना, दैट सेम सिंबल्स वर इन कपबोर्ड, देयर वर लाइक 100 108 कपबोर्ड्स। ओके, और यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी स्टिक के सिंबल से कौन सा सिंबल मैच हो रहा है। तो वो कपबोर्ड आपको खोलना था, उसमें देयर विल बी अ पाम लीफ, देयर विल बी अ पेपर, और पेपर में आपका करंट एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन होगा कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आगे लाइक एकदम करंट में क्या होने। So it was fascinating. It was very interesting. But when I was doing this whole process, मेरे को believe नहीं था, because I am like a very logical. I am from IIT. Even Vedic astrology I have selected because you can actually give answers to all these. Logically, you can explain everything, lot of things through energy, through the personality of planet. Okay, so फिर what I did, I have found. मैंने ढूंढा कौन सा कपबोर्ड है मेरी स्टिक से रिलेटेड। So maybe after 2, 3, 4 minutes, I found one cupboard and I matched that stick. It was totally matching. So I opened that board drawer. फिर उसमें से मैंने पैम्पलेट निकाली, पर्चा निकाला, and it was written in Japanese also, and it was written in English also, because many foreign people also come. तो Japanese English दोनों में लिखा था, ऊपर Japanese में था, नीचे English में ट्रांसलेशन था। तो इट वाज लाइक अ 100 200 वर्ड, एक पैराग्राफ का टाइप का था, एंड इट वाज नॉट सो पॉजिटिव, एंड द लास्ट लाइन वाज दैट आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज इट वाज लाइक वेरी वेरी टेरिबल। दैट लास्ट लाइन वाज दैट यू विल लूज समथिंग टुडे एंड यू विल नेवर फाइंड। ओके, तो जो पत्री थी उसमें लास्ट लाइन ये लिखी थी कि आप आप कुछ खोएंगे, टुडे नहीं था, यू विल लूज समथिंग, आपका कुछ खोएगा और वो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आई गॉट स्केर्ड, आई वाज लाइक कि मतलब ये इतना पॉजिटिव नहीं है, तो कुछ नेगेटिव हो तो यू कैन जस्ट टाई इट देयर, देयर वाज दिस रेलिक, तो उस पे वो पर्ची बना के उसको बांध भी सकते थे। लाइक कि नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आई वॉज रोमिंग अराउंड, और मेरी फ्लाइट थी आई थिंक 2 2 ढाई घंटे में, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 घंटे में मंदिर कवर हो जाएगा, लेकिन इतना भीड़ था कि इट टुक मी अराउंड 2 आवर्स, और 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट थी, एंड द एयरपोर्ट वॉज अराउंड 30 minutes to distance. It was around 40 kilometers. So what happened कि मैं मेट्रो स्टेशन पे जा रहा था एयरपोर्ट मेट्रो के लिए। Suddenly I was searching for my phone, and I realized that my phone is missing. Okay, so मैंने थोड़ा और ढूंढा, I was having a bigger bag also. I opened that bag, searched everywhere. I was like, यार फोन नहीं मिल रहा। I told my friend कि यार फोन ही नहीं मिल रहा है, my phone is not missing. Then I remembered that पत्री, पत्री में लिखा था कि तुम्हें यू विल लूज समथिंग एंड यू विल नेवर फाइंड इट। आई वाज लाइक माय गॉड, आई वाज लाइक, देन आई वाज रिमेम्बरिंग कि किस भाव से गया था मैं, मतलब इस ये सोच के गया था कि नहीं ये सब तो नहीं होता है, सो इट इज जस्ट लाइक फॉर फन। बट इट बिकेम ट्रू दैट मोमेंट इटसेल्फ कि मेरा फोन नहीं मिला, एंड आई हैव टू गो टू Minneapolis. Minneapolis, I have to first go to Florida. I was not going to WCF directly. I was going to Florida. Florida में I had some sessions planned. Okay, and I had to stay at the teacher's place. वो एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ रहे थे, लेकिन फोन ही नहीं था, तो आई वॉज वंडरिंग कि मैं उस टीचर से कांटेक्ट कैसे करूंगा एयरपोर्ट पे। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट, फ्लोरिडा का टेम्पा एयरपोर्ट। सो आई वॉज लाइक लिटरली, मतलब आप लोगों ने देखा होगा अगर इंडिया में भी फोन खो जाए कहीं पे, तो हाउ यू फील। ठीक है, एंड आई वॉज इन टोक्यो जापान,
2 घंटे एग्जैक्टली 2 घंटे से भी शायद कम टाइम बचा था, मेरी फ्लाइट भी थी और फोन भी नहीं मिल रहा। आई वाज लाइक, दैट वाज लाइक द ओनली टाइम। आई जनरली डोंट गेट पैनिक दैट इजीली, लेकिन उस समय मैं पैनिक, और मेरा जो दोस्त था वो और भी घबरा गया, याद है ये तो प्रॉब्लम हो गई, फोन खो गया। तो फिर आई आस्क्ड लोकल पीपल ऑल्सो कि फोन मिला आपको इधर कहीं, तो दे टोल्ड कि आपको फोन मिल जाएगा, यू देयर इज अ पुलिस स्टेशन, यू लॉज अ कंप्लेंट बट इट विल टेक टाइम। एंड आई टोल्ड कि मेरी फ्लाइट है, फोन तो अभी चाहिए। तो लकीली देयर वाज अ आईएसडी एक्टिवेट करी थी। व्हेनेवर यू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, मेक श्योर यू एक्टिवेट द आईएसडी कॉलिंग। The call was going on my number. My friend was having a phone, but nobody was picking it up. तो 15-20 मिनट हमने काफी ढूंढा, नहीं मिला। तो मेरा फ्रेंड बोला कि लेट मी जस्ट गो बैक टू द रूट फ्रॉम वेयर वी हैव केम। हम उस रास्ते वापस जा मैं उस रास्ते वापस जाता हूँ जहाँ से आए थे, यू स्टे हियर। ओके। एंड लकीली आई हैड अ स्मॉल बैग, उसमें आई हैड अ फोटो ऑफ गुरुदेव आल्सो, सो आई वाज प्रेइंग कि गुरुदेव आई एम कमिंग फॉर योर वर्क। और अभी फोन ही खो गया, एक तो 30,000 का फोन भी था यार, पैसे भी गए, और उसके बिना इतना इनकन्वीनियंस होगा। राइट। आई वाज लाइक लिटरली प्रेइंग वेरी हेल्पलेसली, और ऊपर से पत्रिका में लिखा था कि यू विल लूज समथिंग, कुछ चीज खोएगी और कभी नहीं मिलेगी। तो वो भी एकदम सच हो गया था, खो भी गई चीज और कभी नहीं मिलेगी, ये भी इतना क्लियरली लिखा था। ओके। तो मेरी फ्लाइट को अब 1.5 घंटा बचा और मेरे सामने कैब भी खड़ी हुई। मेरा फ्रेंड फोन ढूंढने गया, उसको 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, एंड आई एम लाइक कि आई थिंक ही हैज ऑल्सो रन अप। क्योंकि एक ऑप्शन, क्या आप क्या सोचोगे इस ऑप्शन के, फोन के बिना तो आप जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो एक ऑप्शन लास्ट में दिमाग में आ रहा था कि मैं अपने फ्रेंड का फोन ले लूं, उसकी सिम उसको दे दूं और बोलूं कि तुम नया फोन खरीद लेना, एंड आई टेक योर फोन, वाईफाई का यूज करके आई कैन कनेक्ट विद द टीचर। बट माई फ्रेंड इज ऑल्सो फोन, आई डोंट हैव फोन टू कनेक्ट विद हिम। तो आई थॉट कि मेरा फ्रेंड भी, वो भी डर के मारे, उसे लगा कि यार ये मेरा फोन ले गया है, पता नहीं, वो भी भाग गया। आई वाज लाइक लिटरली कि आई वाज लाइक कि अब तो यार, या तो फोन, फ्लाइट छोड़ना, इट वोंट बी दैट अ गुड आइडिया। तो कैब करके जस्ट फ्लाइट में जाने ही वाला था मैं, सडनली माई फ्रेंड केम रनिंग, माई फोन इन हिज हैंड, एकदम पसीने में। अराउंड 15-20 मिनट के बाद मैंने एकदम फोन, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, हाउ डिड यू फाइंड दैट। तो बोले कि अरे इट इज अ वेरी मैजिकल स्टोरी, अभी तुम बैठो, जाओ, मैं बताता हूँ रास्ते में। ठीक है, तो मैं बैठा, बताया रास्ते में। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ना गिल्ट में भी था कि मैंने वो देवी एनर्जी और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उनको इतना रिस्पेक्टफुली नहीं, मैं एज अ मजाक ले रहा था। तो उन्होंने एक तो प्रूव कर दिया, ठीक है, और वो मिलना भी नहीं था फोन। तो फिर उसने बताया कि जब मैं रास्ते में दोबारा जा रहा था उसी रास्ते पे, उसी टेम्पल में, तो क्या हुआ, मैंने एक दो बार और कॉल करने की कोशिश की और somebody picked up, और किसी ने फोन उठा दिया। लेकिन वो जापानीज बोल रहा था, अब जापानीज में आधे से ज्यादा लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है। ओके। तो जापानीज बोल रहा था, इसे इंग्लिश नहीं आती, और वो भी इट वॉज लाइक बहुत भीड़ भी थी और इतना पास भी नहीं था, अराउंड आधा किलोमीटर का तो रास्ता था ही। तो वो जापानीज में बात करे, उसको समझ में नहीं आए। एंड आई वॉज ऑल्सो प्रेइंग हियर कि यार गुरु जी दिलवा दो। देन ही टोल्ड मी लाइक वन जेंटलमैन हिमसेल्फ केम टू हिम, एक जेंटलमैन उनके पास आया, एंड ही वाज लुकिंग लाइक अ जापानीज, बट ही वाज लाइक हैविंग अ बियर्ड, वाइट क्लोथ, जापानीज इंडियन दोनों का लुक। और वो बोला कि यू आर लुकिंग लिटिल इन स्ट्रेस। बोले हाँ, मेरे एक फ्रेंड का फोन खो गया है, तो आई हैव फाउंड द पर्सन बट ही स्पीक जापानीज। बोले ओ, आई कैन स्पीक बोथ जापानीज एंड इंग्लिश। ठीक है। तो उसने बात करी उस बंदे से जिसके पास फोन था। वो बंदा बोला कि तुम मेरे को इधर मिलो, मैं जा रहा हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ, इधर मिलो और ले लेना फोन, या बाद में ले लेना। देन ही कन्विंस हिम कि नहीं नहीं, फ्लाइट है, यू स्टे देयर, वी विल कम देयर ओनली, टेक द फोन, अदरवाइज। और उसने बहुत पुश करके मेरे फ्रेंड के साथ पूरा आधा किलोमीटर दूर जिसने फोन उठाया था उसके पास गया, फोन लिया, एंड जस्ट लाइक ही जस्ट वैनिश। ओके। और मेरे फ्रेंड को फिर टाइम भी नहीं था, एक बार फोन मिल गया फिर ध्यान भी नहीं दिया वो कहाँ है, एंड ही जस्ट रेन टूवर्ड्स। सो देन ही ऑन द फोन ही वाज टेलिंग कि इट वाज सो मैजिकल दैट पर्सन, मतलब इतना टाइम जापान में पीपल आर सो बिजी, किसी पे इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी हेल्प करे, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है।
that person literally like went with him full, and phone leke he brought it, he gave it to my friend who brought it to me. And then I was just reaching the airport, और luckily flight भी around 20 minutes delay हो गई. I reached 1 घंटा पहले. लेकिन जापानीज एयरपोर्ट में इंडिया जैसा नहीं रहता, 2 घंटे पहले पहुंचता है, 1 घंटा ही सफी है. ओके, और 15-20 मिनट फ्लाइट दे थी, तो आई जस्ट वेंट टू द एयरपोर्ट और सीधे फ्लाइट में बैठ गया मैं. लेकिन आई वॉज लाइक, पहला तो ये मेरे दिमाग में आया कि I was like in a different, like I was not having that much of respect for their gods and their astrology. And it was written कि आपको कुछ चीज खोएगा और कभी नहीं मिलेगा. Your something will be lost and will never be found. But first part happened. Okay, something was lost and very important thing was lost. लेकिन second part, that got changed by grace. I tell you, that was like pure grace. वरना इतनी भीड़ में जापान टोक्यो में, जहां मतलब कोई जान पहचान का ही नहीं. एंड दैट वाज लाइक लिटरली अनबिलीवेबल. मतलब दैट टाइम माय फ्रेंड एंड मी बोथ वर हैविंग गूज़बम्प्स कि ये कैसे हो गया. एंड तो या, सो दैट वाज लाइक द बिगिनिंग. उसके बाद तो फिर एक से एक आई वाज देयर फॉर 2 वीक्स, 2 to 3 weeks. तो दैट वाज द बिगिनिंग. अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं था यूएसए से. वहाँ वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में देयर वाज लाइक सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी थिंग्स हैपेंड. तो या, मे बी लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, फिर लेट मी टेक सम ब्रेथ, फिर उसके बाद आई शेयर फ्यू मोर स्टोरीज. अद्भुत 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 भैया, इतना गजब का ये तो स्टोरी है. लिटरली एवरीवन इज वेरी मच इन दैट ऑ सिचुएशन कि कैसे आपको एक अननोन कंट्री में, जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, देयर यू गॉट योर फोन बैक. एंड आई गेस भैया ये चीज ना, मैंने आई लाइक टू टेल समथिंग अबाउट जापान ऑल्सो, कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे ना ऐसा कोई पुलिसिंग नहीं करता है कि आप अगर ऊपर एलिवेटर में भी जा रहे हो ना, तो आप एक साइड से ही जाओ, रास्ता तोड़ के मत जाओ. दे हैव इट इन देयर माइंड कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है. एंड जापानीज का एथिक्स बहुत स्ट्रांग होता है. एंड आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दिस. कुछ कुछ चीजें आ रही थी, लेकिन भैया ये स्टोरी से आपके रिकन्फर्म हो गया. तो भैया या, आगे. हाँ. तो वही मतलब, सी पीपल टोल्ड मी कि ना मिलने के चांस तो है तुम्हारा फोन. पीपल टोल्ड मी इन इंग्लिश, सम who know new English, कि you may get it, you lodge a complaint to police and you may get it, but I have to miss my flight. Okay, और it is not sure कि मिलता कि नहीं मिलता. लेकिन everything was like happened एकदम sorted. It is like literally unbelievable. उस मोमेंट जब वो फोन खोया था और आपको जब एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन में निकला कि आपका कुछ खोएगा और कभी नहीं मिलेगा, तो आई एम लाइक, तो मिलना ही नहीं. इट इज लिटरली योर डेस्टिनी कैन बी चेंज बाय ग्रेस. दिस रियली आई हैव एक्सपीरियंस दैट. ओके, सो फिर आई रीच फ्लोरिडा. सो फ्लोरिडा में आई हैड अ, सो फ्लोरिडा इज अ कंट्री सनशाइन स्टेट ऑफ यूएसए. तो वहाँ पे अपना इंडिया जैसा ही मौसम रहता है, एकदम गुजरात जैसा मौसम रहता है. इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ सनशाइन. सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम. आई हैड टेकन लॉट ऑफ सेशन, फंड रेजिंग करी काफी डब्ल्यूसीएफ के लिए. ओके, सो द नहीं भैया, नेक्स्ट. टेम्पा फ्लोरिडा में आप थे क्या? Yes, yes. यस, वहां पे एक जन है, इफ यू नो हर, उनका So नाम many. सेजल 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 Yes. पटेल. Yeah. So was at हर place हो. अभी आया था ना. हाँ, वो बहुत ज्यादा सत्वा टॉक्स में भी कुछ दिन पहले आई है. एंड शी वॉचेस, लाइक शी इज अ वेरी रेगुलर व्यूअर ऑफ सत्वा टॉक. शी स्टेज इन टेम्पा. She has only given. I was going directly to DC. She has already only reached out watching Satwa talk to me and told कि आप इधर आओ, एस्ट्रोलॉजी के काफी. ओके, सो लेट मी रीच टू द नेक्स्ट लेवल. तो क्या था, वॉशिंगटन डीसी में अपना इवेंट था. एंड वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए. एंड एंड इट इज वेरी कॉस्टली. मतलब अपना बैंगलोर दिल्ली इतना कॉस्टली है, तो यूएसए यू कैन इमेजिन इट इज सो. तो इनिशियली लाइक आई हैव बुक द होटल, और उसका रेंट था अराउंड $200 पर डे. और अराउंड 10 दिन तो रुकना ही था मेरे को वहाँ पे. तो $200 पर डे, कैन यू इमेजिन, लाइक 80 रुपीज. तो $100 इज 8,000, 16,000 रुपीज पर डे. 10 days का 1,60,000 होटल का ही, खाना वगैरह छोड़ के. तो आई वॉज लाइक यार, इट विल बी लाइक
कैसे होगा मैंने, तो मैंने पहले बुक ही नहीं किया था। आई वॉज लाइक वेरी श्योर दिस इज वॉट यू हैव एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, जबकि 10 लाख 10 लाख पीपल वर कमिंग, but I had this confidence. So I contacted few of my friends, few of my colleagues. So luckily, one of the teacher, Kalpesh Patil, is there, yoga teacher. He was one of my. He is a very good yoga teacher. I did TTP. He was. So he was looking कल्पेश पाटिल भैया वो भी इतने जबरदस्त टीचर हैं, उनके साथ भी हुआ है। very एंड nice. लाइक कि जिस तरीके से वो योगा सिखाते हैं, बहुत सब लोग जानते हैं भैया Yeah. भाई। Yeah. Yoga is like he really inspired me. Okay. So I just reached out to him and मेरे को जानते तो थे ही luckily very well. तो मैंने बोला कि आप मेरा थोड़ा सा ये स्टे का देखो, आप कहाँ रह रहे हो। तो he was actually living at a Washington DC के एक local teacher के यहाँ already, like he keeps on traveling to US. Right now he's in New York only. Okay. And he told, but I may not be staying there, so you go and stay there. If I come, we can manage. And that was a really, his name is James. Maybe sometime we can bring him. And such a big story, guru story. This was like, इतना अच्छा, मतलब they were Americans, proper American Christian, Catholic Christian. Okay, so I stayed at his place for around 10 days और इतना अच्छा पूरा रहने खाने का, and everything was like so well managed. And like I have sponsored him a lot of things, but still like आपका जो होटल का खर्चा था कितना, मतलब how many, everything was like planned for me. I was thinking in that. So that is like, that was one of the gurus. Okay, so now let's, so we were doing सेवा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, काफी टाइम पहले पहुंच गए थे। तो आई वाज लाइक इनटू टू टीम्स, एक तो फूड वाली टीम में था कि जितने भी पार्टिसिपेंट डिग्निटरीज है, एंड सेकंड आई वाज इन फंड रेजरिंग। तो क्या हुआ, WCF का हमारा पहला दिन ही था। तो सबसे पहले तो लाइक इट वाज अ बिग स्टेडियम काइंड ऑफ अ प्लेस, ओपन स्टेडियम से कह के, और हम लोगों ने अराउंड 80 फूड ट्रक्स को बुलाया था उस प्लेस के अराउंड। ओके, सो आई वाज इन दैट टीम। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इवेंट से 2-3 दिन पहले केवल 15 ट्रक्स ने कंफर्म किया, एंड 55 पीपल सेड कि नहीं, कोई और एक बड़ा इवेंट हो रहा है, हम उधर जाए। And we were expecting like 5 lakh people. Day one itself we were expecting 4-5 lakh people, और उसमें से हमारे वॉलंटियर ही 5-10 हजार। तो इट वाज लाइक एकदम, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार ये तो खाने का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। इवन वॉलंटियर्स के लिए भी वी हैव लाइक फूड फॉर ओनली 800 and 1000 people। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जो फूड ट्रक था इसमें वॉलंटियर्स के लिए टिफिन थे, तो आई वाज इन दैट सेवा। तो क्वांटिटी 800-1000 ही थी, and more than 5000 people, 5000 volunteers has eaten food from that। जो वॉलंटियर वाला फूड था, जो मतलब 1/5 था जितना काउंट था, उसने 5000 लोगों को एकदम फुलफिल, ऐसा नहीं कि किसी को कम मिला, एकदम अच्छे से फीड। एंड मोर देन 50 ट्रक्स तक, आई डोंट नो, लाइक इतना बज हो गया था ना WCF का। तो मोर देन 50 trucks turn up for that event. So that was like the first day one। फिर क्या था कि उस समय मौसम का प्रेडिक्शन था कि इट विल बी रेन, लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि दिल्ली वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में काफी लोग गए होंगे। यहाँ से कितने लोग गए थे? मे बी यू कैन रेज योर हैंड। या, तो रेन का बहुत हैवी प्रेडिक्शन था, और पहले दिन तो इट वाज लाइक फुल क्लाउडी। तो सेकेंड डे तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि बहुत बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई भी। ओके, मोस्ट मैनी डिग्निटरीज वाज देयर, बट इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग। ऐसा जैसा ब्लेसिंग शावर होता है ना, इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग शावर दैट आप गीले नहीं हो। एंड गुरुजी टोल्ड बाय हिमसेल्फ कि सी कुछ भी होता है, सो इन इंडिया इट इज सेड दैट blessings are showered from heaven, so it is the blessings we are receiving। So that was like the second very incredible guru story कि उस 3 दिन मौसम इतना अच्छा था, इतना सुहाना मौसम, अनबिलीव। फिर व्हाट हैपेंड, एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट, वैसे शायद हर साल 1-2 साल में होता है, लेकिन देर इज अ इवेंट कॉल्ड गवर्नमेंट शटडाउन इन यूएसए। ओके, तो गवर्नमेंट शटडाउन में क्या रहता है कि सब चीजें बंद हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉट ऑफ नॉर्मल थिंग्स ऑल्सो, ये सब बंद हो जाती है।
तो इट वॉज प्लान्ड ऑन WCF थर्ड डे, और उसका ना सेकंड डे WCF का जो दूसरा दिन था ना, उसी से उसका इफेक्ट चालू हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया था। और वो गुरुजी पे भी गए, गुरुजी से बोला, उनके जो डिग्निटरीज थे बड़े बड़े यूएस पार्लियामेंट के, कि वी हैव प्लान दिस गवर्नमेंट शटडाउन फ्रॉम 1 October, so that national mall where your WCF is happening, so nobody will be able to come there we cannot have any event. उन्होंने क्लियर कहा कि वहां पे इवेंट हो ही नहीं सकता, because it is just in front of that White House. Okay, so there was one more event happening, that was Wisdom Series WCF के पैरेलली October 1st and 2nd, तो वो हम लोगों ने बुक कर रखा था, आर्ट ऑफ लिविंग ने। तो गुरुदेव टोल्ड देम कि ठीक है, वी हैव वन मोर ऑडिटोरियम विद अस, उसकी कैपेसिटी थी ओनली 5,000, लाइक विज्ञान भैरव होता है ना इंडिया में, तो इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट विजडम सीरीज। सो वी विल मैनेज इन दैट, 5,000 जो मेन होंगे उनको वहां ले लेंगे, बाकी एवरीबॉडी कैन वॉच ऑनलाइन। ही आंसर्ड दिस, एंड टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, दैट गवर्नमेंट शटडाउन गॉट कैंसिल्ड। And then Gurudev, like after WCA, he was sharing, you see, this is the beauty of nature. When you are doing something, no, something very good for people, so everything supports you. उन्होंने मतलब 6 महीने पहले से शटडाउन प्लान कर रखा था गवर्नमेंट ने, कि 1 October से 10 October 10 दिन का शटडाउन होना, सब छुट्टी पे चले आएगी, पूरा गवर्नमेंट और सब गवर्नमेंट वर्कर्स, और उसके बगैर WCF हो ही नहीं सकता। दैट मॉल ऑल्सो, दैट स्टेडियम विल बी ऑल्सो शट डाउन, लेकिन nothing, it got cancelled totally, and WCF was a big success. It was like I was in Delhi also, लेकिन जो ये WCF था, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज सो स्मूथ, इनक्रेडिबली स्मूथ। मतलब उस जगह पे इवेंट होते हैं हर हफ्ते, हर महीने इवेंट होते हैं, लेकिन इतना बड़ा इवेंट, हम लोगों ने 5 लाख पीपल हैव, टीम हैज एक्सपेक्टेड 5 लाख पीपल, बट ओवरऑल 3 दिन का मिला के 10 लाख प्लस क्रॉस किया ऑडियंस, 10 lakh plus people was there, and there was zero chaos. Like I was talking to the local, Guruji was himself also telling कि वहाँ की जो लोकल पुलिस थी, काफी, जहाँ मतलब 5 लाख लोग होंगे, तो यू कैन इमेजिन कि मतलब 500,000 तो पुलिस वाले चाहिए आप। तो दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि हमने इतना क्लीन इवेंट आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब और भी कोई पार्टी कुछ भी होता है ना, तो you find lot of beer bottles and lot of fights happening, so many things, और यहाँ पे एकदम साफ, WCF खत्म, अगले दिन पूरा साफ ग्राउंड, एक मतलब कुछ कचरा तक, okay, and no chaos, no fights, nothing. That was like again something like very 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 incredible. तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है उस एरिया में जहाँ पे WCF। Okay, then one my personal guru story also happened that time. You can imagine कि WCF के टाइम so many dignitaries were there, इतनी सारी चीजें थी पूरे दिन भर, तो गुरुदेव must be very busy, but my birthday was falling that day, और पिछले 4 5 6 साल से तो I was like personally केक तो कटवाए ही है, लेकिन इस बार लग रहा था कि इस बार तो बड़ा मुश्किल है, इस बार तो नहीं हो पाएगा, एंड इवन मन में मैं सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा करना है, तो आई वॉज नॉट रनिंग बिहाइंड इट। और उन्होंने पहले ही WCF से पहले ही बोल दिया था कि नहीं, अभी अभी 3 4 दिन कोई भी मेरे पीछे नहीं भागेगा, सबसे दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। तो दैट वाज इन माय माइंड, बट सडनली लाइक एक अचानक से एक यूथ लीडरशिप समिट हुआ। 2 इवेंट थे WCF के, डे 2 या डे 3 में, ठीक है, 2 इवेंट थे, एंड दैट वाज लाइक वेरी स्मॉल इवेंट, लाइक एक लीडरशिप समिट था, उसमें सारी कंपनी के CEOs और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आए थे, तो दैट वाज लाइक 200 300 लोग, हयात होटल में था और एक मैरियट होटल में था, उसमें भी मतलब 200 300 लोग थे, एंड समबडी लाइक समवन सेंड मी टू दैट इवेंट, जिसमें केवल 100 200 लोग थे, और गुरुजी को कुछ टाइम के लिए आना था, 15 20 मिनट आधा घंटा। तो आई वॉज सिटिंग ओवर देयर एंड गुरुजी वॉज देयर, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी टोल्ड कि अच्छा आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है, एंड माय फ्रेंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और लाइक यस गुरुजी यस, एंड दे सेंड मी टू रेस्ट। Then there was like hardly 5 6 लोगों का उस हफ्ते वालों का, but like it was like very surprising for me कि वो himself he called me on the stage, and
I had like photo भी किसी कैमरे मैन ने खींची, but I clicked the selfie also, and it was like a very, what do you say, कि like it was the kind of moment कि मतलब एक एक चीज का every wish, everything is taken care, कि 4-5 महीने सालों से बन रहा है, तो इस साल भी he made sure कि नहीं, इतनी भीड़, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी he will like give due time, and yeah, he will make my birthday memorable. So that was like again like a very like lifetime memory for me. I tell you, America में even like when I was booking ticket for WCF, no, तो मेरे को पता ही नहीं, तो मैंने उस समय सोचा ही नहीं था कि मेरा बर्थडे पड़ रहा है उस दिन WCF के टाइम, एंड आई रियलाइज कि या दैट वाज लाइक रियली गुड, कैसा बर्थडे सेलिब्रेट। या अभिषेक, यू आर सेइंग समथिंग? तो मैं थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ, इट विल टेक 1 more minute। इफ यू हैव इन योर लैपटॉप, अगर आप शो कर सकते हो वो, तो दैट, अगर आपके पास है, गुरुदेव साहिब जी। मैं आपको लैपटॉप? को होस्ट बना देता हूँ। यस, आई इट्स वोंट। इफ इट्स देयर विथ यू। यस, तो ये तो बहुत मतलब जो नहीं होता है, सबसे टाइट टाइम में भी जिस वक्त गुरुदेव के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, उस टाइम भी किस तरीके से एक जो छिपी छिपी हुई इच्छाएं होती है वो भी किस तरीके से गुरुदेव सामने ले आते हैं, दैट्स अमेजिंग। ये तो सही में बहुत जबरदस्त है। मैं भी इधर से थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ कि किस तरह से गुरुदेव ने, जस्ट अ सेकेंड, इवन आई एम सर्चिंग, मिल जाए तो। मेरे पास है वो व्हाट्सएप स्टेटस जो प्रोफाइल पिक है, वही है ना? Yeah, WhatsApp profile picture, but I am through laptop, so I don't know if you are through phone, so you can share your यस, screen for me. मैं एक बार थोड़ा सा मैं लोगों को दिखा देता हूँ। आज तो थोड़ा मेरा मन कर रहा है कि वो फोटो, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इतना ऐतिहासिक, वो फोटो मैं दिखा दूं। सो इट वाज वंडरफुल, जब किस तरीके से गुरुदेव हयात होटल में थे और वहां पे भी पता चल गया कि क्या कैसे है। सो दिस इज द पिक, यू कैन ऑल सी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस, इज दिस द सेम वन? Yes. Yeah, थोड़ा सा क्रॉप हुआ है, लेकिन still you can see Washington DC Festival 2023. Yes. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भैया। इट इज And लाइक, it's हाँ like हाँ ये हाँ, किसी को पता ही नहीं था, इट इज अ वेरी सीक्रेट इवेंट, और मेरे को तो मतलब दूर दूर तक नहीं पता, जस्ट लाइक somebody told me you go there we will need volunteers. I went there were hardly 100 people, and yes, see, that was like one of the biggest Guru story. And in that event also, like there are some small movement also which gets registered in your mind. तो फिर गुरुदेव स्टेज से जब नीचे उतरे, ओके, तो जैसे गुरुदेव के लिए भीड़ लग जाती है ना इंडिया में, वहां पे थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन लगती है, और वहां पे इतनी सिक्योरिटी भी नहीं रहती। हियर वी हैव लाइक 4-5 वॉलंटियर्स चेन बना के कि नहीं। तो एक ओल्ड लेडी खड़ी थी और उनके पीछे से ना, एंड गुरुदेव वाज स्टैंडिंग लाइक दिस एंड समबडी केम फ्रॉम लाइक दैट साइड, गुरुदेव को दिख भी नहीं रहा, तो एक दूसरी लेडी वो ओल्ड लेडी को पुश करके वो गुरुदेव के पास आई। ओके, एंड गुरुदेव एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज लुकिंग देयर, गुरुदेव ऐसे पीछे मुड़े, और वो जो पुश करके आगे आए ना, उस पे मतलब ही लिटरली शाउटेड, बोले नो नो नो, डोंट डू दिस। कोई भी, यू डोंट पुश एनीबॉडी, यू वांट टू मीट मी, दूर से भी, और यू प्रॉपरली कम अहेड, बट डोंट पुश एनीबॉडी, स्पेशली you should allow old people to come in the front, never push old. He was like had so much of care and love for like especially senior citizen, because he उनके लिए it will be very uncomfortable. That was like a very memorable moment for me कि मतलब ध्यान इधर था, but he was able to sense कि what is happening here and here. So that was a one very good story. And even yeah, so he used to go for evening walks also there even after World Culture Festival. हाँ, तो this is also very interesting, क्या दिल्ली में क्या हुआ था कि World Culture Festival के 1-2 दिन बाद he came back to Bangalore, and there was like so much thing happened, everybody is aware about it.
पीपल हैज पुट अ क्लेम कि अपने यमुना नदी को गंदा कर दिया, ये सब हुआ। तो इस बार गुरुजी ने बोला कि अभी मैं 1 हफ्ते रहूंगा इधर और सब चीजें सॉर्ट करूंगा, फिर ही जाऊंगा। Even after WCF, he was there for 1 week, and every day he used to go to the venue and see कि हाँ सब क्लीन है। वैसे तो एक ही दिन में क्लीन हो गया था, but he made sure that everything is like very smooth, and the kind of relations art of living has made over there, unbelievable. Like even every taxi driver you ask ना Washington DC में, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ there is some world cultural festival happening and it will be like it is really amazing। पूरे मतलब अमेरिका में इसकी छाप थी। It was like the, I tell you, it was the biggest event of Art of Living। आर्ट ऑफ लिविंग का इससे बड़ा और इतना ज्यादा फंड रेज भी नहीं हुआ। इतना फंड रेज क्योंकि यूएस का डॉलर वैसे ही इंडिया के रुपीज में बहुत ज्यादा, 80 रुपीज ज्यादा है। तो इतना फंड रेजिंग के साथ इतना बड़ा इवेंट और इतना स्मूथली, इतने सारे आर्टिस्ट, लाइक आई थिंक 70,000 प्लस आर्टिस्ट वाज देयर फ्रॉम 120 प्लस कंट्रीज एंड 10 लाख पीपल वाज देयर। तो इतना बड़ा इवेंट इतना स्मूथली ऑर्गेनाइज होगा, इट इज ऑल लाइक more than effort, it is grace, it is pure। so so yeah, भैया this। एक जो होता है कि जब ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो बहुत बार एक तो हम जो नहीं होते, बहुत सारे एनर्जीज भी आती है ऐसे इवेंट को अटेंड करने के लिए। मतलब एक हम्म। तो होता है कि जो स्थूल जगत जहाँ पे हम लोग सब रहते हैं, एक होता है सूक्ष्म जगत, देयर आर सो मेनी एनर्जीज अराउंड। तो यू आर फीलिंग समथिंग, आप जब वहां पे मेडिटेट कर रहे थे इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, और जब नॉर्मली करते हो तो यू कुछ आपको डिफरेंस लगा कि वहां का कैसा एक ऑरा था, एम्बियंस था? Yes, yes. So, one thing I have realized, in fact, I don't know, like, जैसे I am in Karnataka, Bangalore, right? तो आप कर्नाटका में जाओ and if you know Kannada, okay, so if you speak Kannada in front of local people, so they think like they are from our community, right? तो ऐसे ही यूएसए की लैंग्वेज क्या है? It is English। And I don't know, like many of the American people told that you are from here only, you are an American। I was like, no, no, I have came from India। तो सबसे बड़ी बात थी like you can connect so well with English people, no, those who speak only English। तो एक तो इतना अच्छा कनेक्शन, मतलब कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन का कुछ अंतर ही नहीं, एवरीबॉडी इज सेम। सबसे बड़ा जो मैसेज था ना वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का, एंड सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा, कि आई हैव मेट पीपल ऑफ ऑल द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, बट इनसाइड एवरीबॉडी इज सेम। सबका जो रिलीजन का भी जो बेसिक है ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, दैट आर लाइक टोटली सेम। इट इज लाइक पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग। ओके, तो एक तो ये चीज हो गई, एंड सेकेंडली द मेडिटेशन एंड द काइंड ऑफ events were there na, like there was a team from Pakistan also, like I was having lunch WCF के अगले दिन, तो सामने मेरे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए थे, दे केम फ्रॉम पाकिस्तान फॉर जस्ट दिस इवेंट। और वो इतना घुल मिल गए थे ना, तो दे वर लाइक कि मतलब हम लोग भी ऐसे ही है, जैसे जैसे लाइक वो गाना सुना होगा ना अपने, ऐसा देश है मेरा। पीपल एवरीवेयर, पीपल आर द सेम। जो थॉट प्रोसेस होता है ना, जो बेसिक जो कल्चर होता है, दैट इज सेम। इट जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ few people who thinks in a very different way, उसकी वजह से कुछ chaos हो जाता है। बट ओवरऑल वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, अपार्ट फ्रॉम द अमेजिंग मेडिटेशन, इतना जो हाई। तो वन मोर थिंग वाज देयर, लाइक आई यूज्ड टू रीच माय हाउस, इवन जितना जल्दी कोशिश करो पहुंचने की, आई यूज्ड टू रीच आफ्टर 12, 12 बजे से पहले आई नेवर यूज्ड टू रीच। एंड आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 5 AM, 4 AM 5 AM, क्योंकि 6 7 बजे तक पहुंचना होता था। तो वर्ल्ड कल्चर के सेकेंड डे there was an event in which 1008 Shishi Yoga teachers were performing at the stage, and it was at 7 AM। So luckily I became a performer in that event। So there was like whole 1 lakh people in front of me, and I was performing yoga। And हम लोगों को पहले ही ड्रेस कोड, जो मेरा ये पोस्टर है ना, this session poster you have seen, so that is a picture of that event only। So that was an incredible experience when you perform in a stage, that too like a yoga kind of thing।
That is like amazing. और second एक event था which also like I had not planned to participate, but I was having kurta pajama, so there was this Garba event. So 10,000 Garba dancer on the stage. So I got an opportunity to do Garba at the World Culture Festival stage as well. So these two was like the biggest perk, and इतना अच्छा लगता है ना, I tell you, this is like it feels so good that next time जहाँ पे भी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो या आपकी सोसाइटी कॉलोनी में भी कोई कल्चरल फेस्टिवल हो, you go and participate in and you see the difference. It uplifts your satwa, it uplifts your energy. फिर आप भले ही 3-4 घंटे भी सो रहे हो ना, you stay like totally fresh, full of energy. So yeah, that is in brief my experience of all the events. कुछ ऐसे लोग मिले क्या, थोड़ा सा मैं आपके लिए भी पूछ लूं, जो सत्वा टॉक्स देखते हो या फिर आपको देखा हो? Yes, yes. So you will not believe कि अमेरिका में सत्वर टॉक्स इतना फेमस है, एंड आई नेवर थॉट कि अमेरिका में मैं इतना फेमस सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में क्या है, एस्ट्रोलॉजी ना, एस्ट्रोलॉजी has become like very vast, and there are few people who just want to earn money out of it. इस वजह से रेपुटेशन काफी खराब हो गई है एस्ट्रोलॉजी की इंडिया में। लेकिन जो यूएस में एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब यूएस तक वही एस्ट्रोलॉजर पहुंच पाते हैं जो एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं, मोस्टली गुड वंस, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ उन्होंने कैसे और लोगों को दिया, इट रियली मैटर्स, एंड द सेशंस, द नॉलेज यू आर टॉकिंग, इट रियली शोज व्हाट इज इनसाइड. ओके, so I was first day itself, I was walking, and every 10-20 meters I was finding somebody. I have seen your session, I have seen you come on Satwa Talk also, and more than 100 people, I tell you, you cannot believe, more than 100 people I have met, which I never knew, but they knew me, and mostly through Satwa. So that was again amazing Guru story, and best part of it is like everybody invited me to their place. So I went to New York also after DC, because my return flight from New York. So there was like 10 people who were like fighting. You, Sahil bhaiya, you come to my place. You come to my place. I have to really like shortlist, okay, where I should go. So it is like really amazing reach Satwa Talks has reached, and the name itself Satwa, no, so it really attracts people, and the content comes. It is actually not Abhishek, me, and you. It is actually, there is some grace. There is some grace, and that grace flows when you have a very good intention. You want to do something good for the people and society. जैसा कि WCF में हुआ, WCF का कोर यही था कि everything happened better than expected. तो गुरुदेव वॉज लाइक इन वेरी फन मूड. WCF खत्म हो गया, और किसी इवेंट के बाद गुरुदेव इतने खुश नहीं होते हैं. फर्स्ट टाइम लाइक आई हैव सीन गुरुदेव सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी. वॉलंटियर्स मीट थी WCF के 1 या 2 दिन बाद. तो ही वाज लाइक, अच्छा तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, एंड एवरीबॉडी लाइक ऑल ओनली वॉलंटियर्स वाज देयर, हार्डली 500 वॉलंटियर्स ऑन इनसाइड. Everybody was like shouting, amazing Guruji, ये वो. And yeah, one more interesting Guru story. कि इवन इफ यू सर्च ऑन गूगल, नो, अमेरिका, और अमेरिका में भी स्पेशली वॉशिंगटन डीसी में होमिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो होमिसाइड इज व्हाट, समबडी शूटिंग समबडी एल्स. किसी से लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया और गोली मार दी सीधे कर, मर्डर कर. ओके, एंड स्पेशली इन 2023 बिफोर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, एवरी डे वन होमिसाइड, ऑन एन एवरेज एवरी डे एक होमिसाइड का केस जरूर था. And after World Cultural Festival, it has been around 1 month now. उसके बाद से it has been like एक भी केस अभी तक लिस्ट नहीं हुआ. Can you believe that? जहां डेली एक होमिसाइड का केस होता था और क्राइम्स का केस होता था, after World Cultural Festival, not even a single place. That festival has changed the entire energy of that area. So this, I was searching before the session. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. I was searching on the internet, and it is a data-based thing which I am telling, and it is a big thing. कि जैसे अपने इंडिया में जिस जगह पे पूजा हवन होते हैं ना, तो उस जगह की एनर्जी बदल जाती है, पानी बदल जाता है. ऐसे ही there is lot of tamas in USA. As soon as I landed in USA,
I can feel the difference. इतना मतलब energy था normal इंसान तो it will be very difficult for him to. There is like lot of tamasic energy is there. And after that cultural festival, especially in Washington DC, that energy, whole energy of that place has, and uh, and the facts, the data shows that this is also really like it is something which you should also share with everybody. One of the biggest things which Art of Living and Raven World Festival has done from for the society, apart from all the wonderful events of the वंडरफुल वंडरफुल भैया, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। हम लोग गए नहीं, बट इस सेशन के माध्यम से हमें बहुत सारी फीलिंग आ गई कि क्या माहौल रहा होगा। एंड जो नहीं होता है, कभी कभी सुनने से ही हम उस वर्ल्ड में चले जाते हैं। वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग व्हाट हैज हैपेंड, क्या कुछ रहा है। एंड ऑब्वियसली गुरुदेव जहाँ पे होते हैं तो वहां तो बहुत अलग लेवल का सेलिब्रेशन होता है। वंडरफुल। बहुत सारे लोग हैं, आपको किसी को कुछ अगर पूछना है, कुछ कहना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क और से समथिंग इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। साहिल भैया से या कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, आई गेस सब उस जोन में है जहाँ पे दे आर इन दैट कि कितना बड़ा एक इवेंट हुआ। एंड बहुत जबरदस्त है There is, ये। I think, question, yeah, chat box में हेतल ठक्कर हेतल, हाँ है, नहीं, ये पर्सनल मैसेज है is it person? जिनका कि हाउ टू डील विथ लॉस हस्बैंड हु डोंट ट्रीट यू प्रॉपरली। लगता है इनके इन लॉज और हस्बैंड अगर ट्रीट नहीं करे प्रॉपरली तो कैसे डील किया जाए, ये क्वेश्चन। तो देखो, so deal आप मत करो. Knowledge will only deal with people. It is the knowledge which transform people. So I don't know. You have to find out the way to bring them into the knowledge. And after World Cultural Festival, one thing maybe ये remedy तो मैंने शायद किसी को नहीं बताई होगी, but I have seen the results. You organize something, some puja, some event at your home, some cultural event. क्योंकि क्या रहता है कि arts has lot of power. It actually kind of shifts your consciousness. हम 50% आजकल जो जमाना चल रहा है ना, हम वी आर जस्ट यूजिंग अवर लेफ्ट ब्रेन 70-80% ऑफ द टाइम. सो वी रियली यूज टू वी रियली नीड टू यूज अवर राइट ब्रेन, जो कि आर्ट से रिलेटेड हो. So yeah, you can organize that. And also, like, I just want to share out of, because that is my expertise, कि अभी 30th अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिट हुआ है. राहु एंड केतु का ट्रांजिट हुआ है. तो इट इज वेरी बिग, बिकॉज मतलब ट्रांजिट तो होते रहता है, लेकिन ये स्पेशल ट्रांजिट इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि केतु था मेष राशि में और राहु था तुला राशि में. तो मेष राशि इज लाइक द फर्स्ट साइन, और मेष राशि से वो मीन राशि में गया. तो मीन राशि कौन सा होता है? 12th, आखिरी जोड़ी साइन. राहु केतु आर लाइक उल्टा डायरेक्शन में. तो इट टेक्स 18 years टू कंप्लीट वन जोडियाक. मतलब 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ने ना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया पूरे जोडियाक में. 18 साल बाद ये चेंज हुआ है, और वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा बहुत सारी लाइफ पे. इनफैक्ट आई डोंट नो कितने लोगों ने पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे चेंजेस महसूस किए. हाउ मेनी ऑफ यू? आई डोंट नो. अभिषेक, यू आल्सो जस्ट ऑब्जर्व, क्या पिछले एक हफ्ते में क्या चेंज हुआ? यू विल सी. इवन मेरी पर्सनली लाइफ में, लाइक आई एम इनटू सो मच साधना. इवन इवन आई वाज इन सत्संग अभी गुरुदेव के साथ बिफोर दिस सेशन. Okay, so you know how the situation influence up. This is a very small story I'll tell you. You go to America, तो वहाँ पे पूरा तमस culture है, and people are like the clothing style. Everybody is having tattoo. Okay, even in the Indian cricket team, people are having tattoo on their hands. तो पता नहीं मेरे अंदर कोई डिजायर हुई कि मैं भी एक टैटू वगैरह बनवाता हूँ. मैंने एक बार बनवाया भी था ओम का, टेम्पररी. बट आई वॉज हैविंग दिस डिजायर कि कोई स्पिरिचुअल सा मंत्रा का कोई टैटू बनवाता. तो आई वॉज हैविंग दिस डिजायर, जो कि मेरा एक्चुअली नेचर है नहीं. बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, और मे बी इवन श्री श्री का टैटू. तो आज शाम को ही 7 बजे की बात है, आई वॉज सिटिंग इन द सत्संग एंड आई वॉज हैविंग दिस डिजायर इन माई माइंड. ओके, आज का आप सत्संग देखना. तो
सडनली जो गुरुदेव से क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, उसमें इन हिंदी द क्वेश्चनर आस्क कि गुरुदेव, ऐसा बोला जाता है कि आप स्किन पे कोई भी टैटू बनाओ तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो अब क्या टैटू बनाना आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा ला सकता है? आई वॉज लाइक व्हाट आई वॉज थिंकिंग दिस, एंड पूरे गुरुदेव आश्रम में के सामने, मतलब 1000 लोगों के सामने क्वेश्चन पूछ लिया। एंड गुरुदेव आंसर एज यूजुअल वेरी स्मार्टली, हाँ मतलब किसी ने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगा इट इज परमानेंट, हटा दो, लेकिन इट इज नॉट नीडेड। नया किसी को बनाने का मन है तो बनाने की जरूरत नहीं है। यू आर वेरी क्लियर कि किसी का देख के किसी का इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं भी बनवाऊं, तो किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। So see, every moment, like you also will observe in your life, every moment, every day, you find some news. Okay. Yeah. Coming back to that Rahu Ketu axis, Rahu Ketu transit. So there is a very big transit happening. Okay. So tomorrow I will be keeping one live open to all session. तो किसी को अगर interest है ना, तो they can just ping me and join that session. उसमें there will be few more very good astrology enthusiasts, those who have very good perception. क्योंकि क्या रहता है कि when you discuss like जैसे सत्वा डॉग में, when brainy people discuss something, na, so you come out with new ideas and insight which can actually change your life. So yeah, as a participants also, anybody want to join that Rahu Ketu transit session, कल या फिर शायद परसों हम लेंगे, so just message me, send me a uh, WhatsApp that you wish to join the session, and yeah, it will be really good क्योंकि it will affect everybody's life. हाँ छोटा मोटा, I'm not saying बहुत बड़े तरीके से, लेकिन yeah. So yeah, that is it. Abhishek, anything else? Yeah. यस भैया। आ, ये अभी आई गेस एकदम सेशन के एंड में आ गए हैं। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन है वो साहिल भैया से आप पूछ लीजिएगा। हाँ, साहिल भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए ये सेशन को। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे ही मजेदार मजेदार कुछ सेशंस लाते रहते हैं। और साहिल भैया, जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे? So yeah, आप लोगों को जापान वाली गुरु स्टोरी कैसी लगी? Like it was not a very simple गुरु story, but how was it? वंडरफुल, बहुत गूज बम्स। It was like एकदम जो मूवी होती है ना, एकदम अच्छी खराब, एकदम अप एंड डाउन वाली ना. So you know, I have been traveling to countries, to places to take art of living courses also and other things also. Okay. और हर जगह में जाता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ एकदम चमत्कारी घटना हो, जो कि मैं शेयर भी आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम. तो मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स हियर. तो मे बी इनफैक्ट जो टीचर भी नहीं है ना, तो यू स्टार्ट गोइंग टू गुरुदेव, अगर कहीं जैसे आपके अभी जैसे गुजरात आ रहे हैं 10 to 14. ओके. तो जितने भी लोग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कोई आसपास से है ना, जस्ट गो गुजरात के ऋषिकेश जाएंगे. ऋषिकेश इज अमेजिंग. आई टेल यू, जो ऋषिकेश नहीं गया, यू शुड गो ऋषिकेश व्हेन गुरुदेव इज हियर. तो ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन सम परचेजिंग समथिंग, नई ड्रेस नई क्लोथ दिवाली के लिए, दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट ट्रैवलिंग टू सी मास्टर गुरुदेव के पास जाना, it is a very good idea and you should do it, and you will have amazing experiences in your life, because you know, ultimately it is experience. So through logic you cannot explain, you can explain some things, but you cannot explain everything. So you have to experience that grace, and traveling to attend Gurudev's event is one of the best ways to experience that grace. So on this note, Gurudev is coming to Orissa, na? Sri Sri हाँ, University. अभी For 7 से 9 before that. यूनिवर्सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो कोई भी शिशु यूनिवर्सिटी के पास है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इज गोइंग इन दिसंबर. लेकिन हाँ, शिशु यूनिवर्सिटी किसी किसी के बच्चे हैं उनको भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो दे शुड विजिट एंड सी कितना ब्यूटीफुल कैंपस है. वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. ओके. और अभी तो मौसम भी अच्छा है. समर्स में इट इज हॉट, बट नाउ द क्लाइमेट इज आल्सो ओके. Sahil So Bhaiya, one question, just one, just for my personal question is, when we make a sankalpa online, we have to register, no? So register sankalpa. So there are some options, name, gotra, and suppose I want to make a sankalpa for my son, whether I should put my name or his name. That's obviously
because like in sankalpa it depends. Like if it is a very big sankalpa, then Panditji won't read out the names. It is like only 10, 20, 50 people are there. Panditji actually read out the name nakshatra at the time of blessing. Okay, so if you want it, you're taking it for your son, so you put all his details only. And if you are attending, so you just pray that only ki all his, like it is for him with that intention, because intention is very powerful. Intention can change everything. एक अभी ना गुरुजी से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी ये नॉलेज और ये बात, मतलब जैसे कोई मर जाता है उसके बाद भी चलती है क्या यहाँ, कितने समय तक, जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया किसी जगह पे, तो कितने समय तक चलता? तो गुरुजी क्या बोले, गुरुजी बोले कि किसी ने कुछ बोला या हवन किया वो छोड़ो, किसी एक इंसान की कुछ इंटेंशन भी है ना बहुत स्ट्रांग, जन्मों जन्मों तक चलती है. It is the power just of your thought and intention, and that was Gurudev's God of the last week. So just have good intention and good intention for everybody. That is very important. क्योंकि क्या रहता है ना स्टार्टिंग में, this is also a very nice secret, कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रो होते हैं ना, तो we get power to curse before we get power to bless. How many of you know that? कि हमें कर्ज करने की पावर पहले आती है, ब्लेस करने की बाद में आती है, क्योंकि दैट इज अ रियल टेस्ट. एंड इफ वी गेट स्टक इन दैट कर्ज वाला, वी कर्ज समबडी, तो क्या होगा, हमारा कर्मा बन गया उनको कर्ज करने का, तो क्या होगा, वो वापस आएगा, वो भी हमें या कोई और हमें कर्ज करेगा, फिर हम किसी को करेंगे और हम ही इसी साइकिल में फंसे रहते हैं और उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते. सो it is very important to keep your mind positive, peaceful, and have blessings for everybody. Do not किसी के बारे में बुरा गलती से भी जवान से तो निकालो ही निकालो नहीं, दिमाग में सोचो भी. So this is the ultimate advice for everybody. I know it is not easy to do, it is a very difficult task, but with sadhana, seva, satsang, your awareness, it happens. Okay, so I think on this note, anybody else anything, तो वो मेरे को मैसेज कर देना 1 घंटा. I wanted to keep it 1 hour. तो see you next session. The name I will put my son, na? Yes. Will be son or mine? अरे आप उनको मैसेज कर दीजिए साहिल भैया को. आपके सन का नाम पुट करना है वैसे. Okay. Thank you so much भैया for coming and sharing this wonderful knowledge. Thank you so much. जय गुरुदेव.